Okay, so good morning, everyone. Good morning, class. So there was a lot of confusion about this DBMS lab. So finally, I am conducting this lab at 11:30 and we'll be having a lecture at 1 p.m. Okay? So let's get started without wasting much of the time. The workbench is visible on your screen, right? Yes, ma'am. Chaliye, let's start. Now I'm opening the connection with my root login. तो किसी और ने इंस्टॉल करा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Prashant, you did. And what about others? Acha, Rupal has joined or not? She has asked me about the lecture. She has joined. Please drop a message. Do you have a personal group? कोई personal group है आप लोगों का 5th semester का? उसमें एक message drop कर दो so that there's a lot of students जिनको confusion था lab का. Are you doing it? कि मैं करूं? कोई कर रहा है? You people don't respond. मैम आप डालो वो फिक्स है मैंने। ठीक है. चलो मैं एक मैसेज डाल देती हूँ. Alright. So हमने कल एक client master नाम की टेबल बनाई थी and in that what are the various columns do we have? We have name, address to city, state, pin code, balance due. हमने फिर alter command की help से we have changed the data type of these two attributes. One is pin code and balance. ठीक है. Now with the help of describe command we will be see कि हमारी ये जो client master command है वो कैसे दिखती है. ठीक है. So the client master command is having the various. मैम ये एरर क्यों आता है ये This वाला? client master command is having the various attributes. Sorry, the client master table is having the various attributes और इनके जो अपने structure है वो we can see. ये run क्यों नहीं हो रहा है? Okay, there is some problem in the workbench. वो बंद हो गया window, तो I'm opening it again. ठीक है, so just hang on. Meanwhile, मैं आपको ये दिखा देती हूँ जब से वो open हो रहा है. We have to create the other table. So आज की क्लास में जल्दी से we'll be creating this product master table. We'll be inserting the rows and executing the following queries onto it. ठीक है? So इसको कर लेते हैं फटाफट. जो लोग नहीं कर रहे हैं साथ में just take out a notebook and try to write the snippets of code. ठीक है? Queries लिखते जाओ. Now we have to create a table that is product master. सबको screen कौन सी show हो रही है? ये screen show हो रही है. Yes. ठीक है? So product master table के लिए what are the various columns? एक मिनट.
The very first column is product master का P is capital. Why I'm considering so much about the proper name, because इसी हिसाब से query होगी. आपको वही नाम रखना है जो मैनुअल में है, नहीं तो अगर आप अपना नाम रख रहे हो तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसी वजह से एरर्स आते रहते हैं. तो क्लाइंट प्रोडक्ट नंबर है हमारा पहला एट्रीब्यूट, पहला कॉलम नेम, उसका जो टाइप है दैट इज varchar एंड इट इज हैविंग अ साइज ऑफ, क्या साइज है, साइज दिया हुआ है, साइज नहीं दे रखा है. अच्छा, तो विल बी चेकिंग अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ. प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट नंबर है, इसका साइज लेट्स सपोज 10 रख लेते हैं, ठीक है. उसके बाद द डिस्क्रिप्शन, then it is again a type varchar, then profit percent, and it is of numeric type, unit measure, प्रॉफिट परसेंट वाले में प्रिसीजन भी आएगा ना, क्योंकि उसमें पॉइंट वाला भी एक है हाँ सेटअप. हाँ चलो डाल दो. P, D होता है वो, है ना, जो 2,5 लिखते थे. Unit measure is again varchar, quantity on hand, reorder, ये क्या है, I will number, इसको रीऑर्डर नंबर ले लो, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. इसको हम इस तरीके से यूज कर लेंगे. ये अच्छा ओके, ये रीऑर्डर लेवल है. लेवल है, हाँ लेवल, और इसका है न्यूमेरिक. देन सेल प्राइस कितना है, and the last is cost price. तो यहाँ पे this is our table product master which is having product number, description. अच्छा, तो ये description जो attribute है, जो इसका column name है, we need to change the name because ये एक keyword है, ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, याद रखेंगे so that हम इसको यूज ऐसे ही करेंगे. अब इसको सिलेक्ट करो पूरी टेबल, इस पूरी क्वेरी को, and then execute this command. It is showing an error. डेसिमल वाला पहले होगा, प्रिसीजन वाला बाद में. हाँ ये भी यही कह रहे हैं. तो 10,2. So the table has been created.
तो आप लोगों को देख लो, मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे ये जो मैनुअल है ना, लेट मी शो द मैनुअल। अब ये जो आपने पहला क्लाइंट मास्टर की टेबल क्रिएट की, सबको शेयर हो रहा है ना? हाँ, तो क्लाइंट मास्टर की जो टेबल क्रिएट की, उसका जो कोड लिखा, अब जैसे आपने अभी कोड लिखा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको अपने वर्ड में पेस्ट करो। पहले तो क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर के लिए यू विल टेक द स्क्रीनशॉट और क्वेरी को भी पेस्ट करोगे, फिर उसका आउटपुट को दिखाओगे। तो यहाँ पर आपने, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट मास्टर के लिए मैं बता रही हूँ, प्रोडक्ट मास्टर के लिए जो पूरी स्क्रीन पे यही दिखना चाहिए, ये सब ऊपर की कमांड्स हटा दो। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसको पेस्ट करोगे और फिर इसका आउटपुट कैसे दिखाओगे? इसका आउटपुट दिखाने के लिए राइट डिस्क्राइब प्रोडक्ट मास्टर, तो है यू गेट द आउटपुट कि ये आपके सारे कॉलम्स हैं, these are the types and these are the values they can have। तो ये आपका इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। एक आपको वर्ड फाइल कैसे बनानी है, आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट। तो अब हमारे पास 2 टेबल्स क्रिएट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंसर्ट द डेटा इनटू दीस टेबल्स सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द क्वेरीज ऑन टू देम। तो लेट वी इंसर्ट द डेटा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इंसर्ट कमांड करनी है, ठीक है। तो इसका मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लूं सो दैट आई कैन, ओके चलो। नाउ अब हमें इंसर्ट कमांड करनी है। तो इंसर्ट, व्हाट वाज द सिंटेक्स, हु विल टेल मी? इंसर्ट, हाँ हेमंत, क्या सिंटेक्स है इंसर्ट कमांड का? मेरे को अब क्लाइंट मास्टर में इंसर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी हेमंत? हाँ मैम विच हेमंत? हेमंत झा, 2 मैम हेमंत है क्या आपकी क्लास में? हाँ जी मैम। हाँ, हेमंत सरोत और हेमंत झा। अच्छा, रूपल हैज नॉट ज्वाइन, शी हैज आस्क्ड मी बिफोर अबाउट दिस लैब, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैम हमने डेटाबेस बना लिया। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम डेटाबेस बना लिया, अब टेबल भी क्रिएट कर दी, लेकिन अब उस डेटाबेस के अंदर कैसे जाएंगे जो हमने बनाया है? इंसर्ट इनटू कमांड। क्या कैसे जाएंगे मतलब? मैम पहले क्रिएट डेटाबेस की कमांड लिख दी, फिर टेबल बना के उसे हाँ, रन कर रहे हैं तो कह रहा है टेबल जो है डेटाबेस असाइन नहीं है। आप यहाँ पे जब नेविगेशन बार है ना जो आपका, मे बी आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सैम, आप जो भी आपने यही माई सीक्वल पे काम कर रहे हो कि किसी और पे काम कर रहे हो? मैं माईसीक्वल पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नेविगेटर है, जो नेविगेशन बार है, उसमें आपका अगर ऐसा कुछ आंसर आ रहा है ना, अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है, तो जस्ट सिलेक्ट द डेटाबेस ऑन टू योर वर्किंग। सी, जैसे मैं सैंपल डेटाबेस पे काम कर रही हूँ, सैंपल डेटाबेस की टेबल है मेरी यहाँ पे, मेरा जो डेटाबेस का नाम है दैट इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है मेरे डेटाबेस का नाम, जिसके अंदर मेरी 2 टेबल्स है, वन इज क्लाइंट मास्टर, देखो ये देखो यहाँ पर क्लाइंट मास्टर है, और एक मेरी प्रोडक्ट मास्टर है। आई एम वर्किंग इनसाइड द यूनिवर्सिटी डेटाबेस। यस उसी मैम, हो तरीके गया से अब आपको अपना हो गया डेटाबेस मैम, सिलेक्ट करना है, ठीक है? हो गया, हो गया मैम, हो गया। ओके ओके। Ma'am, please scroll to the top. I have to execute something. क्या क्या अंकुर, व्हाट यू सेड? What are you saying? I'm saying, can you please scroll to the top? Okay. हो गया? Shall we write the query now? Insert query. So insert into table client master into table
followed by the name of the table client master, and then you can write the name. I'm using the second format of insert command. Why I'm using it? Because इसमें कुछ columns अलग हो सकते हैं, मतलब कि जो वैल्यूज दी हुई है इन्होंने, इसलिए फॉर सेफर साइड मैं वाला आउटपुट वाला ऑप्शन यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, आप लोग प्लीज अपना वो खोल लो मैनुअल, उसमें मुझे बताते जाओ कौन कौन से नेम ऑफ द कॉलम्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्क बेंच पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल क्लाइंट मास्टर। व्हाई द स्क्रीन? मैम टेबल कीवर्ड यूज होगा क्या वहाँ पे? नहीं, इंसर्ट इनटू क्लाइंट मास्टर। मैम टेबल, डायरेक्ट टेबल का नेम होगा। insert into client master, then round parenthesis में I will write the name of the columns। ठीक है, तो पहला है आपका client number। मैम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं डलेंगी? वैल्यूज भी डाल सकते हो, मतलब यू कैन यूज द फर्स्ट सिंटेक्स जिसमें आप वैल्यूज लिख के डाल दोगे, बट यहाँ पे ना मैं मल्टीपल रोल्स को इकट्ठे पुट कर रही हूँ, क्योंकि 10 कितनी रोज गिवन है, 6 रोज गिवन है ना, तो आई एम पुटिंग ऑल द रोज टुगेदर। और ऐसे में क्या होता है कि अगर उन्होंने किसी कॉलम का डेटा नहीं दिया हुआ है तो मुझे नहीं पता ना किस कॉलम का डेटा नहीं दिया, तो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम्स और उसकी वैल्यूज लिख रही हूँ, तो डायरेक्टली कॉलम नेम्स के हिसाब से वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी उसमें, एरर फ्री, मतलब कि आई एम कंसिडरिंग ऑल द एरर्स दैट कैन अकर, तो उन एरर्स को बचने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। ठीक है, तो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम जिसकी वैल्यू गिवन है, तो क्लाइंट नंबर, नेम, सिटी, पिन कोड और स्टेट और बैलेंस ड्यू। मैम स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, कौन सी विजिबल है? एक मिनट, now it's visible to you all? सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। चलो, तो यहाँ पे आई हैव रिटन द नेम ऑफ द कॉलम्स, क्लाइंट नंबर, नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड बैलेंस ड्यू। जस्ट मेक श्योर कि जो वैल्यूज है ना, मतलब कि जो नेम ऑफ द कॉलम्स है वो एग्जैक्टली इसी उसमें है। मेरे ख्याल से हमारा जो क्लाइंट नंबर का क्लाइंट है वो स्मॉल है और यहाँ पर अंडरस्कोर है, क्लाइंट नंबर इस तरीके से है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्लाइंट मास्टर में जो कॉलम्स है, इट इज लाइक क्लाइंट नंबर, नेम। देखो अब यहाँ पर देखो, जो मैंने ये वाला फॉर्मेट क्यों यूज किया, मैंने ये फॉर्मेट इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो इसने वैल्यूज दी हुई है ना, इसलिए सिर्फ क्लाइंट नंबर की वैल्यू दी है, नेम दी है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 दिया नहीं है, सिटी दी है, स्टेट दिया नहीं है, पिन कोड दिया है। अच्छा, और इसने देखो पहले पिन कोड दिया हुआ है और फिर स्टेट दिया हुआ है, और हमारे कॉलम जो हमने टेबल बनाई है उसमें पहले स्टेट है फिर पिन कोड है। सो इन ऑर्डर टू टेक द प्रिकॉशंस, पहले से ही प्रिकॉशंस लेने के लिए आई हैव जस्ट गिवन द नेम ऑफ द कॉलम्स प्रायरली, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट फॉर्मेट यूज करती ना तो उसमें मेरी वैल्यूज जो है वो गलत तरीके से इंसर्ट हो जाती। गेटिंग मी? So that's why I have written the name of the columns first. You got it? कि मैंने ये फॉर्मेट क्यों यूज किया है, सबको पता चल गया है? हाँ जी, is it clear to you all? अब यहाँ पे क्लाइंट नंबर मेरा मैंने varchar लिया था, that's why. Yes, am I audible to everyone? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट नंबर का देखो, जस्ट लुक एट नेविगेशन बार पे देखो, जो मेरा क्लाइंट नंबर है उसका जो डेटा टाइप है दैट इज varchar, दैट्स व्हाई आई एम इनक्लोजिंग द वैल्यू इन सिंगल कोट्स। यहाँ पे देखो इट इज varchar, दैट्स व्हाई आई एम इनक्लोजिंग द वैल्यूज इन सिंगल कोट। अगेन द नेम इज इन varchar, तो नेम को भी मुझे सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना है, और नेम क्या दिया हुआ है? इवान। ठीक है, देन उसके बाद की वैल्यू क्या है? सिटी। सिटी कितना दिया हुआ है मुझे? बॉम्बे। देन द नेक्स्ट वैल्यू इज
पिन कोड की मैंने डेसिमल में है तो इट इज 40054। एक मिनट, उसके बाद क्या करना है हमें, पिन कोड के बाद स्टेट डालना है और स्टेट का टाइप वैरकैर है, तो यहाँ पे स्टेट है मेरी महाराष्ट्र। एंड देन बैलेंस ड्यू का मेरा टाइप कितना है, जस्ट लुक एट हियर फ्रॉम द नेविगेशन बार, बैलेंस ड्यू इज इन डेसिमल, तो मुझे इसे को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, देयर इज 15,000। ठीक है, when you are inserting, just take care of the fact when you are inserting multiple rows together, देखो या तो मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं और एक रो में इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है, या अगर मुझे सारी रोज इकट्ठे इंसर्ट करनी है विद द सिंगल इंसर्ट कमांड, आई कैन पुट अ कॉमा हियर, और यहाँ पे ना बड़ा पैरेंथेसिस, मतलब कि एक राउंड पैरेंथेसिस जो सबको एनक्लोज्ड करेगा, ठीक है, और यहाँ पे आई कैन राइट ऑल द डेटा, ऑल द रोज, ठीक है। सो जल्दी से इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज वंदना एंड द नेक्स्ट इज, क्या सिटी है इसकी, मद्रास, एंड नेक्स्ट इज 780001। आर यू ऑल गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग? देन नेक्स्ट इज इसका तमिलनाडु and the balance due is 0. Okay, now let's insert the third row. Uska hai 0003. Name is Ramda और इसकी सिटी है बॉम्बे, देन इसका जो पिन कोड है 40057 एंड दिस इसकी स्टेट इज महाराष्ट्र अगेन, and the balance due is 5,000. ये तो मैं अभी स्टार्टिंग में ना आपको करा रही हूँ, नेक्स्ट टेबल्स खुद इंसर्ट करके रखना प्लीज, नहीं तो इसमें सारा टाइम टेबल इंसर्ट करने में लग जाता है। नेक्स्ट इज बासु, और बासु का भी कैपिटल कर लो, और इसका सिटी है बॉम्बे अगेन, इसका पिन कोड इज 40056, देन महाराष्ट्र अगेन, and the balance due is 0. Ravi, Delhi, and then the pin code is 101. State is Delhi, and 2000. लास्ट क्लाइंट नंबर है आपका 0006, उसका नेम है रुक्मणी, किसका हुआ है, कोई कर रहा है साथ में, बॉम्बे, हाँ जी, यू समवन इज डूइंग अलोंग विद मी, मैम ये कर रखा है, आपने इंसर्ट कर ली रोज,
Yes, ma'am. और फिर क्वेरीज एग्जीक्यूट करी, तो रोज इंसर्ट कर रहे थे तो मुझे कोड भेज देते, मैं कॉपी पेस्ट कर लेती। आयुष आप बोल रहे हैं? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब ये बंद करेंगे एंड let us execute this command. Insert into client master all the name of the columns and this. Operand should contain one column. ये क्या आ रहा है? Operand should contain one column. Okay, so here the rows are inserted. See what we have done, हमने यहाँ पे जो parent वो लगाया था ना, round parenthesis, जो outer round parenthesis लगाया था और उसको close किया था, that I have removed. Simply you have to enclose all the rows in the round parenthesis और last वाले में semicolon लगा देना instead of comma, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपको देखना है, तो there is one command. If you want to see ना कि how your table is looking, table में data कौन सा है, तो there is one command जिसको हम बोलते हैं data query language की command, which we called as select command. तो select star मतलब all the rows. अगर आपको कुछ rows select करनी है, then you will to specify which rows you want to select. But if I want to see all the rows of my table, then I will write select. Select is a command in SQL which is used to select all the rows. Select star from, क्या नाम है आपका? Client master. Client master. ठीक है? Now just execute this query. So here you can see your table. This is your table. Client number, name, address, address 1 and address 2 की value नहीं given थी. That's why null is visible over here. City, state, pin code and balance due. Mahesh Sinha, I can see what you are doing. So stop doing it, else I move you out from the lab. Stop doing the, ये सब चीजें क्या करते हो तुम लोग? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं तुमको? Stop doing this. ठीक है, अब हमने ये कर लिए। अब यहाँ पर जरा मैनुअल भी देखो, just see the queries which are related to this. देखो ये वाला जो है ना प्रोडक्ट मास्टर का, अभी स्टिल वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन प्रोडक्ट मास्टर आल्सो, ठीक है? बट अभी for the time being we are just executing the queries which are from the client master table to find out the names of all the clients. Yes, how will we solving this query? क्या क्वेश्चन है पहला? सबको विजिबल हो रहा है मैनुअल? हाँ, Yes, ma'am. तो यहाँ पर पहली क्वेरी है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। अब आपने क्लाइंट्स में डेटा इंसर्ट कर दिया है, क्लाइंट के नेम के लिए क्या आपके पास कॉलम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम? क्या है? मैं एक बार आपको क्लाइंट मास्टर टेबल दिखा देती हूँ। दिस इज योर क्लाइंट मास्टर टेबल एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। तो आप क्या करोगे? यू विल सिंपली राइट select. देखो select is a new SQL command that we are learning today. Select, अगर आपको कुछ rows select करनी है तो you will simply using a select command which is your data query language. जो data query language होती है उसकी command होती है select. तो अगर आपको select करना है सारी rows तो आप select लिखोगे star. But if you want to select a particular column then you will write the name of the column, that is select name from the name of the table which is your client master. ठीक है?
So this is the query you have to execute. Now let me execute this query onto your workbench. So the first question of your assignment is we need to select the name. So how we'll be writing the query? We'll be simply writing select name. मैंने स्टार कर रहा Select name from client master. We'll be not writing star. If we write star, all the rows will be get fetched. But we only want the name. ठीक है? तो अब इस query को execute करो. So here all the names are selected. तो आपके पास पूरी जो टेबल थी उसमें से सारे names आ गए. Clear है? Next question पढ़ते हैं. Next question is retrieve the list of names and cities of all the clients. हाँ जी, इसके लिए क्या query लिखोगे? Retrieve the list of names and cities of all the clients. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? Select name comma city. simple name comma city from client master. ठीक है? So let me execute this same query. Attendance ले लेना मेहुल. You there in the class? Yes, ma'am. Okay, just take the attendance, please. Okay. Taken. Okay, thank you. So we have the name and the cities of all the clients. So देखो starting में queries जो है वो बहुत simple queries है ना? But as we proceed, we'll be getting complex queries जिसमें हम काफी चीजों का use करेंगे. But अभी we are learning the simple things. So what we are doing, we are simply using the select command. We are writing the name of the columns that we need to fetch. So we have to fetch name, city. कहाँ से fetch करने हैं? From table name. So this is the syntax. What is the syntax of the select command? The syntax of select command is you will have to write select, and then you have to write the name of the column. So column name लिखोगे. So column name could be one or more than one. So column name 1, column name 2, and then कहाँ से select करने? You will be using a from keyword and you will be writing the name of the table. तो table name लिखोगे. अच्छा, अब select command के अंदर where condition भी आ सकती है. Where condition मतलब you want to select those particular columns जो आपकी condition को match करे. तो जहाँ पर let's suppose जहाँ पर balance due, अगर मेरे को सिर्फ name और city उन employees की चाहिए या उन clients की चाहिए जिनका balance due is equals to 0. Let's suppose. So what I'm going to write here, if my query is like, I want the name and the cities of those clients whose balance due is 0. So what I'm going to write here is select name, comma city from client master where balance due equal to where bal due Equal to 0. equals to एक मैम एक ही होगा. एक ही होगा. Equals to 0. ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं. तो यहाँ पे देखो we have Vandana, Basu and Rukmani. As you can see from your, you can also match the result from your, क्योंकि देखो वंदना का 0 था, बासु का 0 था और रुक्मणी का 0 है यहाँ पर, है ना? तो आपके पास सही आउटपुट आ गया है. So where आगे जाके where का ही यूज होगा क्योंकि you are fetching the particular name of the columns where your particular condition matches. ठीक है. So अभी तो असाइनमेंट 1 में अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें से वेयर कंडीशन का यूज नहीं है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू पीपल हैव टू, जैसे ये लैब ओवर होगी, प्रोडक्ट मास्टर में डेटा फीड करके रखोगे. ठीक है. और प्रोडक्ट मास्टर की जो क्वेरीज है ना, इसमें जैसे ये वाली लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मास्टर टेबल, इसके लिए क्या क्वेरी लिखोगे? As I have not inserted the value, I cannot run, but I can tell you the output here. मतलब कि the query list the various products available from the product master available from the product master table. तो आपको सारे products available की लिस्ट बनानी है. तो उसके लिए क्या टेबल लिखोगे? कॉलम्स का क्या नाम है? उसमें हमारे पास कॉलम नेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे पास ना.
So you can fetch the product number and description for this. कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके लिए आप कौन कौन से कॉलम फेच कर सकते हो. यू कैन फेच द प्रोडक्ट नंबर and description column in order to show what are the columns available, what are the products available. ठीक है. Now list all the clients who are located in Bombay. मैम इसमें वेयर कंडीशन वेयर में सिटी इक्वल टू बॉम्बे हो जाएगा. ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है. And display the information for client number this and this. तो इसको करते हैं. मैम वेयर Display the information for client number 0001 and 0002. So what we gonna write for this is, हाँ जी इशिता क्या लिखेंगे? मैम वेयर कंडीशन में वो दोनों क्लाइंट नंबर लिख देंगे. कैसे लिखेंगे? Where client number equals to 1001. 0001 और दूसरा कैसे लिखूंगी? मैम कॉमा नहीं और. ठीक है. यू विल बी यूजिंग अ और ऑपरेटर. ठीक है. क्योंकि और ऑपरेटर और में आउटपुट 1 कब आता है कि जब एक ट्रू हो या दूसरा ट्रू हो, कोई भी ट्रू हो. तो मतलब आपको दोनों का फाइंड करना है ना. तो अगर आप अच्छा यहाँ पर एंड लिखोगे क्योंकि आपको दोनों का लिखना है, या और मैम और होगा ना. और होगा क्योंकि एंड तो दोनों हो ही नहीं सकते ना. तो ये 0002. And why I am enclosing it into single quotes? Because there are of type varchar. अगर मैं इनको सिंगल कोट्स में नहीं डालूंगी तो मेरे पास एरर आएगा. ठीक है. So I have to enclose them into single quotes. मैम क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन कह रहा है तो नेम और क्लाइंट नंबर की जगह स्टार नहीं होगा. स्टार भी कर सकते हो. हाँ उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन बोली है ना. हाँ स्टार कर लो because they have asked for all the information. क्या आंसर आ गया? एक मिनट. और क्लाइंट नंबर इक्वल टू 0002 होगा. We have to write it again. ये चीज ओके. सो जहाँ पे क्लाइंट नंबर 0001 है और क्लाइंट नंबर 0002 है तो आपके पास वो दोनों रोज फेच हो गई हैं. ठीक है. तो लिखने का तरीका समझ में आ गया कि वी हैव टू राइट द कॉलम नेम इक्वल्स टू दिस और कॉलम नेम इक्वल्स टू दिस. तो पूरा लिखना है. तो आप हर एक क्वेरी को जैसे एग्जीक्यूट करोगे उसको कॉपी पेस्ट करते जाना अपने वर्ड में, नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी. बार बार मैं बोल रही हूँ. नाउ डिस्प्ले फाइंड द प्रोडक्ट विद डिस्क्रिप्शन दिस. तो ये जिनका डिस्क्रिप्शन ये है तो ये वाला आप उसमें वेयर कंडीशन में ये और ये लिख सकते हो. तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी. फाइंड ऑल द प्रोडक्ट whose sell price is greater than 5000. I think you can do this question. कर लोगे ना ये क्वेश्चंस? यस मैम. Find the list of all the clients who stay in city Mumbai, Bombay और city Delhi और मद्रास. तो इसमें तो आप कर सकते हो. यहाँ पर क्लाइंट नंबर की जगह क्या आ जाएगा? सिटी आ जाएगी. तो क्लास ओवर हो गई क्या? तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लो and just paste here.